Hello everyone. Today we will discuss about further things about electric dipole. So in previous lecture we have discussed that how we will calculate electric dipole at axial position, electric field due to dipole at axial position, electric field due to dipole at equatorial position. But if you are given electric dipole and told that calculate electric field at any point in space, then how you will calculate, we will see in this lecture. So electric field of a dipole at any point, suppose that this is the electric dipole, this is negative charge, this is positive charge, and distance between this is 2l, as we know, and at a very large distance, this is p r from electric dipole, we have to calculate electric field. So this p point is not at axial position or equatorial position, then how we will calculate the electric field? So first of all, we will form an angle theta from this point. If we join this p point with the center of dipole, then we will get an angle theta. In vector resolution, we will resolve this dipole moment into two components. One is along p point, our required direction of electric field, and another is perpendicular to this p point. So if we resolve this AB along the direction of p, then we will get 2 points. This will shift towards this, A will shift to A1 and B will shift to B1. So there is shift like this. And if we see this, then dipole, this q charge comes here and this plus q charge comes here. Now if we calculate electric field at p, then it will be at axial position, and we will know very well that how we will calculate electric field due to dipole at axial position. Now another shifting, we will shift this electric dipole to perpendicular of p, that will, this will move towards this. So this AB will shift towards A2 B2, this, and this is dipole. So at point P is perpendicular to dipole, so we will calculate electric field at this point, equatorial position. And at equatorial position, this electric field direction will be along PL, and in axial position the direction will be along PK, and we will after that get an resultant position along PM. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे निकालना है हमें, स्पेस में एक डाइपोल दिया हुआ है और कोई वो पॉइंट ना एक्सियल हो ना इक्वेटोरियल हो, और किसी भी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इस पहले पॉइंट पी को सेंटर ऑफ डाइपोल से मिला देंगे, एक एंगल बनेगा थीटा, और उसके बाद इस डाइपोल को रिजॉल्व कर लेंगे, क्योंकि डाइपोल मोमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। एक ए बी को अगर इस पी के डायरेक्शन की तरफ रिजॉल्व करेंगे तो ये ए बी जो है A1 B1 के फॉर्म में बदल जाएगा, और अगर इसके परपेंडिकुलर लंबवत अगर रिजॉल्व करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा A2 B2 के फॉर्म में।
तो अगर A1 B1 के फॉर्म में डाइपोल है तो एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे जो जिसका वैल्यू E1 होगा और डायरेक्शन PK की तरफ होगा, इधर होगा। और अगर इक्वेटोरियल पोजीशन में निकालते हैं तो P पे निकालते हैं तो उसका वैल्यू E2 होगा और उसका डायरेक्शन PL होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों का फिर वेक्टर के फॉर्म में रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये PM के डायरेक्शन में हो जाएगा और जिसका वैल्यू E होगा। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमको पता है कि एक्सियल पोजीशन पे जो ये हमने E1 लिखा, एक्सियल पोजीशन पे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ड्यू टू डाइपोल 1/4πε0 2p cos थीटा अपॉन r³ अराउंड PK, मतलब कि डाइपोल के डायरेक्शन में। और अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पे देखें तो 1/4πε0 p sin थीटा अपॉन r³ अराउंड PL की डायरेक्शन। और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर लंबवत हैं, क्योंकि ये एक्सियल पोजीशन है, इक्वेटोरियल पोजीशन है, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। अब हम इनको रिजल्टेंट ऐड कर देंगे E1 E2 को। जब E1 E2 को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, E1 E2 को चूंकि परपेंडिकुलर है तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर का अंडर रूट रहेगा। और ये हमने एडिशन किया। अब हम इसको मिटाते हैं और देखिए अगर E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर करें, E1 E2 में बहुत सारी चीजें कॉमन है, केवल अलग क्या है, यहाँ पे देखिए कॉमन क्या निकल रहा है, 1/4πε p अपॉन r³, ये दोनों जगह पे कॉमन है। इसको ऐसे देखिए आप लोग, suppose that P into 2 cos थीटा। तो अगर E1 E2 में देखें तो ये जो इतनी चीजें हैं ये तो कॉमन है, 1/4πε0 p अपॉन r³, यहाँ पे भी 1/4πε0 p अपॉन r³, ये दोनों जगह कॉमन हो सकता है। और यहाँ पे क्या बचा है, 2 cos थीटा, यहाँ पे sin थीटा, इनका होल स्क्वायर में ऐड करना है तो 2 cos थीटा का होल स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा और sin थीटा का होल स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इसको हम जब ऐड करेंगे तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्योंकि हमको पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 4 की जगह 1 cos स्क्वायर थीटा यहाँ से निकल जाएगा तो ये 3 cos स्क्वायर थीटा बचेगा और sin स्क्वायर प्लस थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी और बाकी चीजें ये सेम बच जाएंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट वैल्यू है वो क्या होगा, इसको हम मिटाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट वैल्यू होगा E, तो हर जगह से 1/4πε0 p अपॉन r³ तो हमने कॉमन ले लिया था और ब्रैकेट में 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हमने किया, ये ब्रैकेट में अंडर रूट में है। फिर ये आगे बढ़ के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अंडर रूट। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल, जैसा कि ये है और ये कोई पॉइंट P है। अगर ये थीटा दिया है तो इस पॉइंट पे जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा वो किस पे डिपेंडेंट होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल P पे, इसके डिस्टेंस R पे और थीटा पे। तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ। और
अब डायरेक्शन क्या होगा, तो ये थीटा और अल्फा में एक रिलेशन होता है। ये जो डायरेक्शन है ये कैसे हम निकालेंगे, तो अगर ये अल्फा डायरेक्शन बन रहा है tan अल्फा बराबर m की अपान p के, ऐसे था, तो m की अपान p के वो कैसे होगा E2 अपान E1, E2 अपान E1। अगर इन दोनों को हम E2 अपान E1 करें तो फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान r क्यूब कॉमन होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 cos थीटा अपान साइन थीटा, यानी कि 2 cot थीटा, सॉरी 1/2 tan थीटा होगा, क्योंकि साइन थीटा अपान में 2 cos थीटा, साइन थीटा अपान में 2 cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 tan, तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1/2 tan थीटा। तो अगर थीटा दिया है तो हमको अल्फा का डायरेक्शन अगर निकालना है तो पहले ये एक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर tan इनवर्स ये अल्फा की वैल्यू हो जाएगी। तो ये डायरेक्शन अल्फा के फॉर्म में निकलेगा, ये अल्फा है, यहाँ से रिलेशन अगर हम ले लेंगे तो इनके हेल्प से हम अल्फा निकाल सकते हैं, tan अल्फा बराबर 1/2 tan थीटा, क्योंकि हमको थीटा ही पता रहेगा, अल्फा नहीं पता रहेगा, तो थीटा की वैल्यू अगर इसमें इंसर्ट कर देंगे तो ये हमको न्यूमेरिकल वैल्यू देगा और उसका tan इनवर्स जो होगा वो अल्फा दे देगा। तो इस तरीके से ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन के लिए है और ये मैग्नीट्यूड है डाइपोल के कारण। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल अगर रख दिया जाता है तो क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो क्या होगा। तो दो कंडीशन है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कैसा है। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो क्या होगा, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो क्या होगा। यूनिफॉर्म का मतलब कि पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कि कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, यानी कि असमान इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह उपस्थित है, तो वो अलग कंडीशन है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो उसमें टॉर्क डेवलप होगा और उसके साथ साथ फोर्स भी डेवलप होगा उस डाइपोल पे। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो क्या होगा, केवल और केवल टॉर्क डेवलप होगा, डाइपोल के कारण केवल और केवल टॉर्क डेवलप होगा, जबकि कोई फोर्स नहीं डेवलप होगा। ऐसा क्यों, हम देख लेते हैं। जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E, जिसका डायरेक्शन इस तरफ है और हमारे लेफ्ट साइड डायरेक्शन है ये, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने इसमें एक डाइपोल रख दिया -q +q और वो एंगल बना रहा है थीटा। अब चूंकि हमको पता है कि कोई भी सिस्टम होता है वो एक स्टेबल कंडीशन रखना चाहता है, वो अपनी एनर्जी जो है मिनिमम रखना चाहता है। तो ये डाइपोल करेगा क्या, ये जो डाइपोल है ये हमेशा अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की तरफ अलाइन करना चाहेगा, अपने आप को हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डाइपोल का जो डायरेक्शन होगा वो चाहेगा कि उसका भी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही हो जाए। तो ये +q चार्ज इधर आएगा और -q चार्ज इधर आना चाहेगा।
ऐसे कंडीशन में इस पॉइंट पे एक फोर्स लगेगा माइनस क्यू ई, जिसका डायरेक्शन इधर है राइट साइड में, और प्लस क्यू ई इस पे लगेगा, इसका डायरेक्शन लेफ्ट साइड में है। अब इन दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज है। टॉर्क कब लगता है? जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज होते हैं तभी टॉर्क डेवलप होता है। तो अगर इन पे इस रीजन में नेट फोर्स देखा जाए तो इन दोनों फोर्स को अगर हम जोड़ देते हैं, वेक्टोरली जोड़ते हैं, तो जीरो हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, जबकि टॉर्क डेवलप हो जाएगा। और वो टॉर्क जो डेवलप होगा वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? तो हमको पता है टॉर्क बराबर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स क्या है? तो यहाँ पे क्यू ई फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। हमने कूलॉम लॉ के समय ही देखा और इलेक्ट्रिक फील्ड के समय देखा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा? क्यू ई। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? तो अगर इसकी लेंथ 2a है, इस डाइपोल की लेंथ, डाइपोल लेंथ अगर 2a है और ये थीटा दिया हुआ है, तो ये लेंथ, इसको हम ये जो लेंथ है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या हो जाएगा? 2a साइन थीटा। तो यहाँ पे 2a साइन थीटा। अब क्या हो गया? q इंटू 2a इंटू ई साइन थीटा। हमने इसको अरेंज किया, और q इंटू 2a क्या होता है? डाइपोल मोमेंट, तो p ई साइन थीटा। और चूंकि p ई साइन थीटा है तो वेक्टर मल्टीपल में, मल्टीप्लिकेशन में हमको पता है कि अगर दो वेक्टर है a क्रॉस b, तो ये क्या होता है? ए बी साइन थीटा होता है और इसका डायरेक्शन एम कैप होता है। और अगर दो वेक्टर है a डॉट बी, तो क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो ये चीजें होती हैं, ये स्केलर क्वांटिटी होती है और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ से क्या होगा? पी ई साइन थीटा है, अगर यहाँ से कंपेयर करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? इसका डायरेक्शन पी क्रॉस ई। तो ये जो डायरेक्शन होगा ये इलेक्ट्रिक या तो इस प्लेन के बाहर होगा या इस प्लेन के अंदर होगा, जो भी टॉर्क डेवलप होगा उसका डायरेक्शन। तो टॉर्क बराबर पी क्रॉस ई। और उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डाइपोल रखते हैं तो एनर्जी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वो क्या हो जाएगा? माइनस पी ई डॉट माइनस पी डॉट ई, यानी कि माइनस पी ई कॉस थीटा। पी डॉट ई ए डॉट बी हमने लिखा, तो वो ये है। तो ये क्या रहा? टॉर्क रहा और एनर्जी रहा। तो टॉर्क क्या होता है? पी क्रॉस ई। एनर्जी क्या होता है? माइनस पी डॉट ई। तो ये डाइपोल में के बारे में पूरी चीजें थी। अब हम लोग एक आध दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अगर कोई भी न्यूमेरिकल देगा तो हमको क्या देगा? हो सकता है थीटा की वैल्यू दे दे और p और e की वैल्यू दे दे, तो सिंपली पूछेगा तो हम उसमें वैल्यू इंसर्ट कर लेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा। तो अगर p, e और थीटा की वैल्यू दे तो हम आराम से एनर्जी और टॉर्क निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एक न्यूमेरिकल है, इसमें लिखा है कि एक वाटर ड्रॉप है, उसको सपोर्ट करने के लिए कितने इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत होगी यदि मास उसका 10 के पावर माइनस 7 kg है और चार्ज उस पर 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम है, यानी कि एलिमेंट्री चार्ज के बराबर है। तो हम क्या करेंगे? एम जी बराबर, चूंकि ये देखिए अगर कोई भी वाटर ड्रॉपलेट है तो हमेशा ग्राउंड पे जाना चाहेगा, तो इसको काउंटर करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा और उसका डायरेक्शन अपवर्ड में होगा, क्योंकि हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन नीचे होता है। तो ये ऊपर लगाने वाला डायरेक्शन कितना इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यही निकालना है। तो एम जी बराबर क्यू ई और ई बराबर एम जी अपान क्यू, सब वैल्यू सिंपली रख देंगे, हमको एक ये वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लोग नॉर्मली, चूंकि यहाँ पे डायरेक्शन पूछा नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड पूछा है, तो हम बहुत सिंपल वे में ये निकाल सकते हैं।